नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जीएसटी ने हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में इन 6 सालों में बहुत ही अहम रोल निभाया है। आज इसको लेकर एक सिंपोजियम का आयोजन किया गया है कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट और टैक्स डिपार्टमेंट के जो कार्यकर्ता है यहां पर मौजूद हैं। किस तरह से जीएसटी द्वारा जो जम्मू कश्मीर यूटी में फ़ायदा हुआ है, क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या इसमें जो मान्यता हैं वो गिनाई जाएंगी। तो आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। Are also focusing on tax compliance. Again, a revenue augmentation trend. One of the trends that we found was that the service sector is the major contributor of revenue in Jammu division as well as the whole UT. So our major thrust has been on focusing on the service sector. So all the service sectors are being regularly seen, monitored, and wherever that we find that there has been any loophole, or wherever we find that there are certain provisions like return filing has not been on time, there has been input tax credit ineligible and eligible. So all these awareness initiatives are being also undertaken at our level, so that it should not go like the department is vilifying any sector, but there has been an awareness drive also, and after that wherever there has been gaps in the tax revenue, they are being plugged through timely intervention of the department. Taxpayers, and through the medium of those representative bodies who are here, that it's because you have come forward in this last 5 years to show that you do believe in coming forward in a more progressive manner than what could have ever been. There will be a lot of initiatives taken by everyone in different ways, and rightly so, because the cause deserves not only celebration but also internalization of some of the commitments that we make to ourselves. So that was the starting point, and the stage was absolutely open for everyone to plan across division and even within the circle. Now, why I said as a surprise is that yesterday I came back from I was away last week and I got to Delhi. And no idea about the scale, no idea about what's in store. And the surprise was when I come here in my family and we made a guest. So that was the first surprise. And that to the chief guest. So why I said surprises, because I normally believe in being the host. So the tables were turned this time, where I was given this pleasant surprise of feeling relaxed that I'm a guest in my family. But thank you, Namrata, for giving that sense of, actually watching the family, this tax family, about the growth which has been made in tax revenue for GST. When I recap 3 things. Number 1 is building trust. Building a trust factor with each other. And we do believe that that trust in also the honesty of the taxpayers is important, because we do believe that it is promotion and it is also extending a facilitating hand, which counts as much as the regulatory mindset, which 7,300 crores हमारा जीएसटी में कंट्रीब्यूशन हुआ। तो ओवर द पीरियड टैक्स कंप्लायंस जो है वो बढ़ता गया है और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर्स रजिस्टर भी हो रहे हैं। तो पहले साल 17 में करीब 70,000 लोग थे और अभी करीब 1,30,000 जो है फिगर गया। तो टैक्स बेस इंक्रीज़ हुआ है और साथ ही साथ जो है बेस में नए टैक्स पेयर्स जो हैं, जो कि एक्चुअल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो ऐड हुए हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है और ये सिर्फ सेलिब्रेशन की बात नहीं है,
साथ ही हम लोग जो है वो पूरा हफ्ता वो काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, रिसोर्स पर्सन्स हैं, टेक्निकल सेशंस है, तो इसमें आदान प्रदान होगा क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल बिल्डिंग जो है हमारे ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरी होती है जब हम अपने पूरे इस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के उसको ज़्यादा और भी एफिशिएंट करने की बात हम लोग देखते रहते हैं हमेशा। मैम इंडिविजुअली अगर देखें तो ट्रेडर्स को कितना बेनिफिट हुआ है और इसके अलावा जो कॉमन मैन है उनको कितना? देखिए, ट्रेडर्स को बेनिफिट ये है कि जब ये सिस्टम समझ लेते हैं तो एक सीमलेस एक्सरसाइज है जीएसटी का कि आपका पोर्टल है, ऑनलाइन चीज़ें फाइल होनी है, इधर उधर उन्हें जाना नहीं है, उनका पूरा जो है वो डिजिटली उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड हो जाते हैं, कैलकुलेशन आसान होता है। इसके अलावा ये पूरा वन नेशन वन टैक्स ये जो रेजीम है तो ये तो सिंप्लीफाई किया है कि बहुत सारे कोई टैक्सेस है नहीं, एक ही टैक्स में बाकी सब सबस्यूम हो जा रहे हैं, एंट्री टैक्स वाला वो बैरियर नहीं है, और साथ ही साथ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक एडवांटेज होता है तो दूसरे स्टेट्स के साथ जो इंटर स्टेट परचेज सेल्स होते हैं तो उसका भी फ़ायदा ट्रेडर्स को मिलता है। तो इसमें तो ट्रेडर्स को बहुत लोगों ने कहा है कि जब प्रोसीजर को अच्छे से उन्होंने अडाप्ट कर लिया है तो उन्हें बहुत सिंपल लगता है पहले के रेजीम के हिसाब से। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीएसटी के 6 इयर्स कंप्लीट सक्सेसफुल होने पे एक सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, और इसी के साथ साथ ये कैसे साल रहे, क्या क्या कमियां हैं और क्या इसमें फ़ायदे हुए हमारी स्टेट को, हमारी कंट्री को, हमारी यूटी को, तो उस पर आज चर्चा है। और बड़ा अच्छा है कि ये 6-7 दिन जो इस पे पूरा मंथन होगा कि क्या हम कैसे इसको बेटर बना सकते हैं, क्या इंडस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, क्या व्यापारियों की प्रॉब्लम्स हैं जिसको दूर किया जा सकता है। जीएसटी वीक सेलिब्रेशन का आयोजन आज यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जिसमें आपने देखा टैक्स डिपार्टमेंट के जो कार्यकर्ता हैं, आला अफसर हैं, वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। उन्होंने किस तरह से अवेयर करना है लोगों को जो टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो आम जनता है, और इवन टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को भी ये एक अवेयरनेस दी है कि किस तरह से लोगों को इससे अवेयर कराना है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।